بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر مراج الدین خان، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، کسان پی جی کالج بہرائچ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اختر سلطان اصلاحی صاحب نے لکھا ہے اور اس کا نام ہے زہر کی پڑیا۔ تو کہانی سماعت فرمائیں۔ رات آفس سے گھر پہنچا تو امی کہنے لگیں، حمید اسپتال سے واپس آ گیا ہے، ماشاءاللہ اس کا آپریشن کامیاب رہا، ممکن ہو تو کل اس کی عیادت کراؤ۔ اس کی ممی کا فون آیا تھا، وہ تمہیں یاد کر رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حمید کا آپریشن کامیاب رہا۔ جبڑے کا کینسر اتنا پھیل چکا تھا کہ ڈاکٹر نا امید ہو چکے تھے۔ یہاں ممبئی کے ڈاکٹروں نے تو مایوسی کا اظہار کیا تھا، وہ تو اللہ بھلا کرے، اس کے ماموزاد بھائی کا جو روس میں ایک بہترین ڈاکٹر ہیں، اس نے حمید کو روس بلایا اور اس طرح سے حمید کی جان بچی۔ امی میرے جگری دوست حمید کی بات کر رہی تھیں جو کینسر کے علاج کے لیے روس گیا تھا اور 2 روز پہلے ہی انڈیا واپس آیا تھا۔ امی، آپ نے حمید سے بات کی تھی یا اس کی ممی نے؟ نہیں بیٹا، فون تو حمید کی امی کا تھا۔ آپریشن بہت بڑا اور خطرناک تھا، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حمید کی جان بچ گئی۔ میں نے سنا ہے اس کا آدھا جبڑا اور زبان کاٹ کر نکال دی گئی ہے، اب وہ بیچارہ کیسے بات کرے گا؟ امی کی بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی، البتہ اس سے تھوڑی خوشی بھی کہ حمید کا آپریشن کامیاب رہا۔ وہ موت کے خوفناک منہ سے باہر آ گیا، ورنہ سب امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ تکلیف اور دکھ اس بات کا کہ زبان کٹ جانے کی وجہ سے حمید شاید کبھی بات نہ کر سکے، پھر آدھا جبڑا بھی کاٹا گیا تھا، اس لیے شاید اس کا چہرہ بھی بہت خوفناک ہو چکا ہوگا۔ میں نے امی سے کہا، کل میں آفس سے چھٹی لے لیتا ہوں، آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ حمید کی عیادت کو چلیں۔ اب جب تک میں حمید کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں گا مجھے چین نہ آئے گا۔ حمید میرا جگری دوست تھا، ہم دونوں نے 5ویں سے 12ویں تک تعلیم ایک ہی اسکول میں حاصل کی تھی۔ اللہ نے اسے مردانہ حسن سے مالا مال کیا تھا۔ اس کا سرخ رنگ، تیکھے نقوش، چوڑی پیشانی، لمبا قد اور گٹھا ہوا مضبوط جسم اسے اپنے دوستوں میں ہی نہیں سینکڑوں میں نمایاں رکھتا تھا۔ وہ پڑھنے لکھنے میں بھی اچھا تھا، عام طور سے فرسٹ ڈویژن سے ہی پاس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کبڈی، کرکٹ، فٹ بال کا بھی اچھا کھلاڑی تھا۔ اس کی بدولت ہمارے اسکول کی ٹیم جہاں بھی جاتی جیت کر واپس آتی۔ اس کے اخلاق بھی اچھے تھے، وہ اکثر اپنے دوستوں کی ہی مدد کرتا تھا۔ اسکول کے تمام لڑکے اور استاد اس سے خوش رہتے۔ وہ میرا بہت بے تکلف دوست تھا۔ 9ویں جماعت کے امتحان کے بعد وہ 2 ماہ کے لیے اپنے چچا کے گھر مالیگاؤں گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد وہ اکثر مالیگاؤں کا اور وہاں کے اپنے چچازاد بھائیوں کا ذکر کرتا۔ ایک روز جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو ہم دونوں ایک ساتھ گھر کی طرف چلے۔ مجھے لگا کہ حمید نے مجھ سے نظریں بچا کر منہ میں کوئی چیز ڈال لی ہے، ایسا آئے دن ہونے لگا۔ تو ایک روز میں نے اس سے کہا، پیارے دوست، نظر بچا بچا کر چپکے چپکے کیا کھاتے رہتے ہو؟ کبھی تو دوست کو بھی دکھاؤ کیا کھاتے ہو۔ وہ ہنسا اور بولا، سونف کے کچھ دانے جیب میں تھے، میں نے منہ میں ڈال لیے، وہ بہت کم تھے، آئندہ تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ اور پھر واقعی اگلے دن اس نے جب اپنے منہ میں کچھ ڈالا تو تھوڑا سا مجھے بھی دیا۔ وہ میٹھے سونف کے دانے تھے، مجھے سونف پسند نہ تھی، اس لیے میں نے واپس کر دی۔ پھر تو یہ روز کا معمول ہو گیا، وہ اپنے منہ کے کونے میں اکثر سونف دبائے رکھتا۔ بہت دنوں بعد یہ راز کھلا کہ اس نے اصل بات مجھے نہیں بتائی تھی، وہ سونف نہیں گٹکھا کھاتا تھا۔ شاید اس نے میری تسلی کے لیے چند روز جیب میں سونف رکھ لی تھی۔ یہ راز اس دن کھلا جب ایک دن اس کی امی میرے گھر آئیں اور کہنے لگیں
बेटा तुमको खबर है, हमीद माले गांव गया तो अपने चचाजाद भाइयों और दोस्तों की सोहबत में गुटखा खाने लगा। बेटा हम लोग उसे समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं है। वो अपने जेब खर्च के पैसों से गुटखा खरीद लेता है। देखते नहीं हो कि उसकी सेहत कितनी खराब हो गई है। वो तुम्हारा जिगरी दोस्त है, शायद तुम्हारी बातों और मशवरों का कुछ उस पर असर हो। हमीद की अम्मी के चेहरे से दुख साफ झलक रहा था। मैं भी हैरान था। अब तक मैं यही जानता था कि हमीद सौंफ खाता है, वरना मैं उसे पहले ही समझाने की कोशिश करता। अगले दिन जैसे ही हमीद से मुलाकात हुई, मैं उस पर बरस पड़ा। देर तक उसे लान तान करता रहा और गुटखे के नुकसानात बताता रहा। जब मैंने उससे पूछा कि ये गंदी आदत तुम्हें कैसे लगी, तो कहने लगा, मालेगांव में मेरे 2 चचा रहते हैं। माशाअल्लाह उनका लोम कपड़ा का बड़ा कारोबार है। दोनों चचा और उसके तीनों बेटे सब गुटखा खाते हैं। इनमें राशिद बिल्कुल मेरी हमउम्र है और मुझसे बहुत बेतकल्लुफ़ है। उसने 2 बार मुझे थोड़ा थोड़ा गुटखा चखाया और कहने लगा, इससे मुंह की बदबू दूर हो जाती है, हाजमा भी अच्छा हो जाता है और फिर गुटखा खाने की एक अलग शान है। यहाँ तो लोग या तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर गुटखा खाते हैं। उसने मुझे ये भी समझाया कि बीड़ी सिगरेट के मुकाबले में गुटखा के नुकसानात बहुत कम हैं। वो अक्सर गुटखा खाता और जब खाता तब मुझे भी ज़रूर पेश करता। मैंने उसकी मोहब्बत और लिहाज में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया। मैंने सोचा था कि पूना वापस आने के बाद गुटखा छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब मैं उसका आदी हो गया हूँ। अब इसे छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। प्यारे दोस्त, क्या बताऊँ, पूरा घर मुझे समझा रहा है। मैं उसे छोड़ना भी चाहता हूँ, मगर थोड़ी देर के बाद अजीब बेकुली और बेचैनी पैदा हो जाती है, और जब तक मैं थोड़ा सा गुटखा मुँह में न डाल लूँ मुझे चैन नहीं आता। मैंने उसे तफसील से गुटखा और दूसरी नशा और लतों के नुकसान बताए। उसने वादा किया कि वो पूरी कोशिश करेगा कि ये गुटखा छोड़ दे। मालूम नहीं उसने कोशिश की या नहीं, अलबत्ता मुझे मालूम है कि उसने गुटखा नहीं छोड़ा था। 12वीं के बाद मैं आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। 5 साल के बाद जब वतन वापस आया तो मालूम हुआ कि हमीद ने 12वीं के बाद तालीम का सिलसिला बंद कर दिया। वो अपने वालिद के साथ इनके जनरल स्टोर में हाथ बटाने लगा। इसका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर के फासले पर था। एक रोज़ मैं उससे मिलने गया। वो माशाअल्लाह अपने कारोबार में बहुत कामयाब था। दुकान पर कई मुलाजिम थे। उसके अब्बू ने अब दुकान उसके हवाले कर दी थी। 2 साल पहले उसकी शादी भी हो गई थी। अब वो एक बेटे का बाप भी था। मैं उसे अपने शादी का दावतनामा देने गया था। हमीद से मिलने के बाद मुझे एक धचका सा लगा। अब वो पहले वाला हमीद न था। वो काफ़ी दुबला हो चुका था। सुर्ख और सफ़ेद रंग हल्का स्याही माहिल हो चुका था। होंठ तो स्याह थे ही, दांत और मसूड़े भी अजब पीले पीले हो चुके थे। हाल अहवाल पूछने के बाद मैंने उसकी सेहत खराब होने के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया तो मुर्दा दिली से मुस्कुराते हुए बोला, कैसे कहूँ, गुटखा ने मेरी सेहत बर्बाद कर दिया है। चंद माह पहले मुंह और ज़बान पर छाले पड़ गए थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उसने दवा दी मगर कोई आराम नहीं। छालों की वजह से कुछ खाना पीना मुश्किल, बोलने में भी तकलीफ, तबीयत हरदम उदास और भारी भारी रहने लगी। मजबूरन मुंबई टाटा कैंसर अस्पताल गया। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद कैंसर होने का खतरा जाहिर किया। चंद माह के बाद इलाज के बाद छाले खत्म हुए। अब मैंने गुटखा खाना बंद कर दिया है, मगर दवाई अभी जारी है। दुआ करो मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। शादी के बाद मैं मुलाजमत के लिए बहरीन चला गया। हमीद से फ़ोन पर बात होती रहती। वो अब भी परेशान था। मुंह में जख्म और छाले आए दिन पड़ जाते। बहरीन से वापस आने के बाद मैंने इंडिया ही में मुलाजमत कर ली। अब हमीद से आए दिन मुलाकात होने लगी। उसने एक रोज़ मुझे बताया, प्यारे दोस्त, अब डॉक्टरों ने कंफर्म कर दिया है कि मुंह में पड़ने वाले छाले कैंसर ही हैं। दवाओं से जिस कदर मुमकिन था अब इलाज हो चुका। अब शायद मुंह का ऑपरेशन करके अंदर का कुछ हिस्सा काट कर निकालना पड़े। क्या कहूँ, शायद ज़बान भी काटनी पड़े। ये कहते हुए वो भभक भभक कर रो पड़ा। मैं भी अपने आंसू को न रोक सका। हमीद, जो अपनी खुशगुफ्तारी की वजह से दोस्तों में बुलबुल के नाम से मशहूर था, अफसोस ज़बान से महरूम हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी, उसके लिए दुआ की। सुबह 9 बजे मैं अम्मी और बीवी सबीला को लेकर हमीद के घर पहुंचा। हमीद हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अंदर से एक तरफ का आधा मुंह डॉक्टरों ने काट निकाल दिया था। खूबसूरत चेहरा बदसूरत हो चुका था। वो बोलने से कासिर था। ज़बान तकरीबन पूरी काटनी पड़ी थी। उसकी अम्मी, अब्बू और बीवी गम व अंदोह की तस्वीर बने हुए थे। मुझसे खुद भी इसकी हालत देखी ना जाती थी।
दुख की वजह से मैं उससे कुछ कह ना सका। वापसी में अम्मी और सबीला बेहद गमज़दा थीं। अम्मी कहने लगीं, गुटखा और दूसरी नशावर चीज़ों से कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है, हुकूमत क्यों नहीं उस पर पाबंदी लगाई। अब मैं उनकी बात का क्या जवाब देता कि ख़ास तौर से इस्लाम ने तो सदियों पहले इस तरह की चीज़ों को हराम करार दिया था। काश हमारे नौजवान सोचें कि नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। तो समझता हूँ कि हमारी ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।